Welcome students on our YouTube channel RS Aspirants. Here we are going to discussing about PGT HTET Biology Sample Paper, that is 2023. So the first question is, the term cell was coined by. I repeat, the term cell was coined by. Options are Robert Brown, Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, and Rudolf Virchow. So, firstly, the Robert Brown. Robert Brown discovers the presence of nucleus. Next, Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek discovers the sperm cells in animals and man. Next, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow proposed a theory that is omnis cellula e cellula, means cells are arise from pre-existing cell. So here the correct option is Robert Hooke. Robert Hooke introduced the term cell in 1665. Now we move on the second question. Second question is, cell theory was propounded by. I repeat, cell theory was propounded by. Options are Purkinje, B option is Skeldon, C option is T. Schwann, and D option is Boss, Skeldon and Schwann. So, first Purkinje. Purkinje introduced the jelly-like substance, that is the protoplasm. Protoplasm is discovered by the Purkinje. So we remind it by P for Purkinje and P for protoplasm. Next, Skeldon and Schwann. Skeldon, a botanist, and Schwann, a zoologist, both propounded the cell theory. So the correct option is D option, that is Skeldon and Schwann. Both propounded the cell theory. Next, third question is, cell organelle in which cell sap is found. I repeat, cell organelle in which cell sap is found. Option is vacuole, B option is nucleolus, C option is chloroplast, and D option is Golgi apparatus. So, first, the correct option is the vacuoles, because vacuoles contain the cell sap. Cell sap, it is filled with the fluid, and here it provides the rigidity to the plant cell. Some important tips for the vacuoles are, vacuole is surrounded by a covering known as the tonoplast membrane. Outer covering of the vacuoles is known as the tonoplast membrane. Vacuoles store water, mineral and reserve food in the form of sugars. So remind it. So the correct option is the vacuoles. Vacuoles contain the cell sap. Next question. Cells originate from pre-existing cells was said by. I repeat, cells originate from pre-existing cells was said by. Option is Skeldon, B option is Schwann, C option is Rudolf Virchow, and D option is Daughtry. So, later we discussed about the cell theory. In the second question, we discussed about the cell theory. Cell theory is proposed by both the scientists, that is Skeldon and Schwann, and the Rudolf Virchow discovers the cells originate from the pre-existing cells. He proposed a theory that is omnis cellula e cellula. Omnis cellula
E cellula is proposed by Rudolf Virchow. It means that cells originates from the pre-existing cell. Now we move to the next one, that is cells of a tissue have. I repeat, cells of a tissue have. First option is same origin and functions. Next, B option is same origin and different function. C option is different origin and same function. And D option is different origin and different function. So, the correct option is the same origin and the function. Because we know that the tissues are the group of cells. When the cells combine to form the tissue, and tissue combines to form the organ, and organ combine to form the organ system, and then a whole organism is formed. So, the definitions of the tissue is, a tissue is an association or coagulation of group of cells. So, those cells are originate from the same origin. So, tissues also originate from the same origin and the function. So, हमारा आंसर हो जाएगा same origin and the function, that is the first option. First option is correct option, same origin and the function. So, now we move on the next one, that is adipose tissue is an example of. Adipose tissue is an example of. Adipose tissue is an example of is the correct answer is connective tissue. Adipose tissue stores the fat. Firstly, it is very important that adipose tissue stores the fat inside it. Fat store. So, the correct option is the connective tissue. Now, we move to the next one. Which of the following is a dead tissue? I repeat, which of the following is a dead tissue? First option is collenchyma. Next, B option is sclerenchyma. C option is xylem parenchyma. And D option is phloem parenchyma. So, the correct option is sclerenchyma. The cells of sclerenchyma is a dead tissue. Sclerenchyma cells provide mechanical strength, and it does not have a chloroplast, so it can't prepare its own food. So the correct option is the sclerenchyma. I move to next one. The longest phase of the cell cycle is. I repeat, the longest phase of the cell cycle is. Options are G1 phase, Z2 phase, prophase and telophase. So, prophase and telophase both are included in the M phase. एम फेज मीन्स माइटोटिक फेज में ही आते हैं प्रोफेज और टीलोफेज. नेक्स्ट वन इज द G2 फेज. G2 फेज is for 3 to 4 hours and M phase is for only 1 hour. Next, G1 phase. G1 phase lasts for 6 to 12 hours. So it is the longest phase of the cell cycle, that is the G1 phase. And also S phase is also included. S phase is for 6 to 8 hours. So I draw a cycle that shows the hours of first one is the G1 phase. G1 phase is for 6 to 12 hours. Next is the M phase. M phase is for 1 hour. Next is the G2 phase. G2 phase is for 3 to 4 hours. Next is S phase. S phase lasts for 6 to 8 hours. So the correct option is G1 phase, which is the longest phase of the cell cycle. So now we move on the next one, that is
When did J.E. Purkinje coin the term protoplasm? We studied about that. J.E. Purkinje gave the term, that is the protoplasm term. So when did he give this term? In 1839. The correct option is 1839. He proposed the term protoplasm in 1839. Protoplasm is basically living type of fluid, jelly type of fluid discovered by the Purkinje in 1839. Now, next. What is the shape and size of cells related to? What is the shape and size of cells related to? Shape and size of the cells is related to the functions of the cell. Functions of the cell. It doesn't depend on the size of the organism, not on the weight of the organism, and not on the number of cells. It only depend on the functions of the cell. Next one. Blood from body parts is carried to heart by. Blood from body part is carried to heart by. अगर हम एक साइकिल बनाएं which shows the circulation of blood, that is, first is the body part. Body part से deoxygenated blood हार्ट में जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन. और कौन लेके आता है उसको? दैट इज़ द वेन, सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा. सो बॉडी पार्ट से हार्ट में जब ब्लड आता है तो उसको वेन कैरी करती है. हार्ट से फिर वो जाता है राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में. और जब वो लंग्स में जाता है तो उसको कौन कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टरी. सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है सिर्फ वही एक अकेली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. नेक्स्ट, ब्लड मूव्स टू द लंग्स. लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है बिकॉज देयर इज एल्वेओली वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. नाउ लंग से फिर वापस हार्ट में आता है. हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आता है और उसको कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन उसको लेके आती है. सारी वेन्स, सभी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती हैं. सिर्फ एक अकेली पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाता है एरोटा में. एरोटा से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स इज कैरिड टू हार्ट बाय. बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट में कौन लेके आता है? सो आंसर इज वेन. वेन इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज valves are present in all. Valves are present in all. First option is arterioles. B option is arteries. C option is capillaries. And D option is veins. I repeat, first option is arterioles. B option is arteries. C option is capillaries. And D option is veins. So the correct option is the veins. Veins because arteries क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में जाता है तो उसका पूरा प्रेशर से वो जाता है. उसको किसी वाल्व की ज़रूरत नहीं होती. वो जिस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पूरे प्रेशर से मूव करता है. पर वेन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आते हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट में लेके आती हैं वेन्स. और इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए ताकि बैकफ्लो ना हो जाए ब्लड का. तो इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं. Valves only on present in the all the veins. So the correct answer is the vein. Next, from right ventricle blood is sent to. Right ventricle से blood कहाँ जाता है? From right ventricle
ब्लड इज सेंड टू, अभी हमने इसका चार्ट अभी फ्लो चार्ट किया था हमने, राइट वेंट्रिकल से ब्लड सेंड होता है लंग्स में। कौन लेके जाता है उसको, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में लेके कौन जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक अकेली पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो लंग्स में ब्लड को लेके आती है फॉर द प्यूरिफिकेशन। So now we move on the next. Excretion of excess amount of water in form of water vapors takes place by. Excretion of excess amount of water in form of water vapor takes place by. First option is the kidney, B option is lung, C option is skin, and D option is liver. So here the correct answer is lungs. Lungs are responsible for the excretion of gaseous waste. ये लंग्स ही हैं जो गैसियस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं। ये वेपर्स की फॉर्म में वेस्ट को, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज द लंग्स। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज सिस्टम ऑफ विच trachea is an important part. System of which trachea is an important part. So अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन में तो ब्लड में आर्टरीज, वेन्स, कैपलरीज, ठीक है, ये तो सर्कुलेशन में तो ब्लड सर्कुलेट करेगा और इसमें हमें आर्टरीज, वेन्स और कैपलरीज की ज़रूरत होती है, तो ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर। एक्सक्रीटरी में हमारे पास किडनी का रोल प्ले होता है, ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, डीसीटी, इनकी ज़रूरत होती है, तो एक्सक्रीटरी भी नहीं हो सकता। डाइजेस्टिव में हमारे पास माउथ से लेके माउथ, देन हमारे पास फूड पाइप, ऑसोफेगस आता है, स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड एनस, तो इसमें भी नहीं आएगा। बचा हमारे पास रेस्पिरेटरी। अब हम इसके पाथवे की एक बारी बात कर लें। सबसे पहले हमारी जो एयर होती है दैट इज गोज टू द nose to nostril, enter into the nostril, then to nasal passage to nasopharynx, nasopharynx से फिर वो larynx में जाती है, larynx को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, और larynx के बाद वो ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स बनी होती हैं जो कोलैप्स होने से बचाती है। ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए इसीलिए वहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल, और फिर एल्वोलोई, लंग्स में जो एल्वोलोई प्रेजेंट होती है वहाँ पे जाके गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ट्रैकिया किसका पार्ट हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हुआ, तो करेक्ट आंसर इज द रेस्पिरेटरी, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। नाउ प्लूरा इज अ कवरिंग ऑफ, I repeat, pleura is the covering of. First option is heart, second option is kidney, C option is lungs, and D option is liver. अगर हम बात करें हार्ट की कवरिंग को बोला जाता है पेरिकार्डियम। हार्ट की कवरिंग होती है पेरिकार्डियम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है किडनी की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिटोनियल। नेक्स्ट इज लीवर जो होता है वो ग्लाइसन्स कैप्सूल से कवर रहता है, ग्लाइसन्स कैप्सूल से कवर रहता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द लंग्स इज कवर्ड बाय द प्लूरा। लंग्स डबल लेयर से कवर्ड होता है, दैट इज आउटर प्लूरा एंड द इनर प्लूरा, और उनके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। तो द करेक्ट आंसर इज लंग्स बिकॉज प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ लंग्स। नाउ नेक्स्ट, exchange of gases takes place in, I repeat, exchange of gases takes place in। अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। फर्स्टली हमने पढ़ा ट्रैकिया तो होती है विंड पाइप।
जिसमें से ऑक्सीजन पास करती है और इसमें हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, ये तो पैसेज में आती है। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई भी पैसेज में आती है। फिर आते हैं कैपलरीज। कैपलरीज तो ब्लड को पास आउट करने का काम करती है, ये तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं होती है। नेक्स्ट आता है एल्वोलाई। एल्वोलाई इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्वोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द alveoli. So the correct answer is alveoli. Next, puberty in males develops at the age group of. Puberty in males develops at the age group of. First option is 8 to 10 years. B option is 10 to 12 years. C option is 12 to 14 years. And D option is 15 to 16 years. So the correct answer is 12 to 14 years. बिकॉज मेल्स में जब प्यूबर्टी आती है वो फीमेल्स के बाद आती है, 1-2 साल बाद मेल्स में प्यूबर्टी आती है। अगर यहाँ पे पूछा जाता आपसे प्यूबर्टी इन फीमेल्स डेवलप, देन इट द करेक्ट आंसर इज द 10 to 12 ईयर्स। बट यहाँ पे मेल्स का केस पूछा गया है, तो मेल्स में फीमेल से बाद प्यूबर्टी आती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 12 to 14 ईयर्स। Next, I hope these questions are clear to you. Next is 19, that is types of cell division by which male and female gametes are produced. I repeat, types of cell division by which male and female gametes are produced. First option is A, mitotic division. B option is mitotic division. C option is meiotic division. And D option is free nuclear division. अगर हम बात करें ए माइटोटिक डिवीज़न की, ए माइटोटिक डिवीज़न को हम डायरेक्ट सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, और जो फिटल मेम्ब्रेन होती है उनमें भी ए माइटोटिक डिवीज़न होती है। तो ये सिंपल डायरेक्ट सेल डिवीज़न होती है। सो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज द माइटोटिक डिवीजन। अब माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल से 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। माइटोटिक डिवीजन में एक सिंगल सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, सेम नंबर होता है उनका, सेम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं और डीएनए भी सेम अमाउंट रहता है जैसा उनके पेरेंट सेल्स में होता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास माइटोटिक। नेक्स्ट आता है फ्री न्यूक्लियर। अब बात करें फ्री न्यूक्लियर की, फ्री न्यूक्लियर सिर्फ एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। अच्छा, माइटोटिक डिवीज़न कहाँ पे देखने को मिलती है, ये हमें मिलती है सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स जो होते हैं नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी के, और जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स जब ग्रो कर रहे होते हैं तब वहाँ पे भी माइटोटिक डिवीज़न होती है। 1 सेल से 2 सेल्स बन रहे होते हैं, ऐसे 2 से 4 इस तरह डिवीज़न होती रहती है। फिर आते हैं मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक डिवीज़न इज द करेक्ट आंसर बिकॉज मियोटिक डिवीज़न अकर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है उसी टाइम पे मियोसिस होती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज द मियोटिक डिवीज़न। नेक्स्ट, sperms are produced by. Sperms are produced by. First option is the testis. B option is the scrotum. C option is the epididymis. And D option is the seminal vesicles. I repeat, testis, scrotum, epididymis and the seminal vesicles. So here the correct answer is the testis. Testis produce sperms by the process known as spermatogenesis. Spermatogenesis means the formation of sperms. So here the correct answer is the testis. Okay, next question is, during lactation, dash grams of protein more is required per day?
लैक्टेशन के टाइम पे जो मदर होती है उसको कितना प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, दैट इज़ 20 ग्राम्स, 30 ग्राम्स, 40 grams and 59 grams. So the correct answer is 30 grams. 30 gram of protein more is required per day for a lactating woman. So now we move on the next one. Carbohydrates are widely distributed in. Carbohydrates are widely distributed in. Carbohydrates किस में आपको ज़्यादा मिलते हैं? That is animals, plants, seafoods and dry fruits. The correct answer is plants. बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके थ्रू वो कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और रिएक्शन क्या रहती है फोटोसिंथेसिस की? प्लांट्स क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? फर्स्ट, प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड इज वाटर. थर्ड, chlorophyll. And fourth is sunlight. ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है दैट इज़ द ग्रीन इन कलर और यही सनलाइट को ट्रैप करता है. तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट्स के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. और रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड present in the atmosphere react with water to form glucose, that is C6H12O6 plus oxygen. O2 is also released. This O2 is taken up by the animals and other human beings, or the carbon dioxide that we release is absorbed by the plants. So the cycle, that is carbon dioxide and oxygen, their quantity is maintained and limited in the atmosphere. So now the next question is, carbohydrate formed by the process. Carbohydrates are formed by the process. कार्बोहाइड्रेट कौन सी प्रोसेस से बनते हैं? अभी हमने पीछे बात की है फोटोसिंथेसिस की. तो फोटोसिंथेसिस, फोटोथेरेपी, फोटो आइसोमेरिज्म या फोटो ऑक्सीडेशन. सो आंसर इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से आप कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्लांट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं और इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है. द रिएक्शन विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, आई रिपीट, वाटर. नाउ इट फॉर्म ग्लूकोज, that is 6 carbon compound C6H12O6 and oxygen is released. So carbohydrates are formed by the process of photosynthesis. So now the next question is, out of the examples of complex carbohydrate is, out of the example the complex carbohydrate is, option 1 is sucrose, second one is the lactose, third one is the pectins and fourth one is the maltose. So फर्स्ट हम बात कर ले अगर सुक्रोज की, तो सुक्रोज ग्लूकोज की यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है. जब दो ग्लूकोज की यूनिट्स कंबाइन करती हैं तब सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है. लैक्टोज हमारा बनता है, एक ग्लूकोज की यूनिट होती है और एक गैलेक्टोज की यूनिट होती है. माल्टोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट की कॉम्बिनेशन से. तो यहाँ पे ये हमारे डाइसेक्राइड्स हो जाते हैं. जब दो ग्लूकोज की यूनिट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाती है तो हम इनको डाइसेक्राइड्स बोलते हैं. बट जो बात करें हम पैक्टीन्स की, तो पैक्टीन एक कॉम्प्लेक्स स्टार्च है. अब जो स्टार्च होता है वो बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है. इसमें बहुत सारे यूनिट्स
हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन करते हैं, मान लो n नंबर ऑफ टाइम्स ग्लूकोज कंबाइन कर रहे हैं और वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, स्टार्च की। तो जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहेगा दैट इज़ द पेक्टिन। पेक्टिन इज़ द करेक्ट आंसर। और ये सॉल्यूबल फाइबर होता है, पॉलीसेक्राइड होता है जो हमारे फ्रूट्स के अंदर मिलता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज़ द पेक्टिन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is one of the example of polysaccharide is, one of the example of polysaccharide is, अभी हमने बात की कि maltose is formed by the combination of glucose and fructose. Next, glucose is monosaccharide, ribose is also monosaccharide, maltose is disaccharide. Here the correct answer is starch, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्टार्च। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर लिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स आर जर्नली। मेन न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से मेन न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगरी में लिस्टिंग करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सेकेंड इज़ हाइड्रोजन एंड वाटर, सी ऑप्शन इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन इज़ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड ई ऑप्शन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑक्सीजन एंड वाटर, क्योंकि यही दो मेन हमारे गैसेस कंपोनेंट्स हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन इज़ द गैसेस कंपोनेंट एंड द वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ। तो ये हमारे पास दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको हम लिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, organisms prepare their own food from the new materials are called, organisms prepare their own food, जो organisms अपना खाना खुद बनाते हैं, that is plants, from the new material are called, उनको आप क्या बोलते हो, ऑटोट्रॉप्स कहते हो, सेप्रोफाइट्स, हिट्रोट्रॉपिक, मोनोट्रॉपिक या ऑल आर करेक्ट, इनकरेक्ट। देखो, सेप्रोट्रॉफिक होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिके ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना फूड किसी और से ले, या तो प्लांट्स पे डिपेंड है वो अपने फूड के लिए या फिर एनिमल्स पे डिपेंड है, हम उसको बोलते हैं हिट्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट इज द मोनोट्रॉफिक। मोनोट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग ओनली वन काइंड ऑफ फूड, एक ही टाइप का फूड खाना, दैट इज द मोनोट्रॉफिक। बट इन केस ऑफ ऑटोट्रॉपिक द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमारे पास कौन आ जाता है, प्लांट्स और एल्गे। कुछ एल्गे क्या होते हैं हमारे पास, ग्रीन कलर के होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं और अपना खाना खुद से बना सकते हैं। और ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिसमें आ जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप, और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो हमारे पास ये हो जाते हैं हिट्रोट्रॉपिक मोड में। बट मोस्टली प्लांट्स यूनिवर्स में ऑटोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द प्लांट्स एंड एल्गी आर, जितने भी प्लांट्स हैं, अभी हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है, ऑल द प्लांट्स एंड एल्गे आर, ऑप्शन फर्स्ट इज द सेप्रोट्रॉपिक, बी ऑप्शन इज द हिट्रोट्रॉपिक, सी ऑप्शन इज द फोटोट्रॉपिक, D option is the chemotropic and E option is the zootropic। देखो, सेप्रोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो डेड और डिके ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है। सेकंड आता है हिट्रोट्रॉपिक। हिट्रोट्रॉपिक दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। फोटोट्रॉपिक, जो फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाता है, दैट इज़ द फोटोट्रॉपिक।
नेक्स्ट इज द कीमोट्रॉपिक. कीमो मीन्स द केमिकल्स. केमिकल्स का यूज़ करके अपना खाना बनाए उसको कीमोट्रॉपिक बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ द जूट्रॉफिक. जूट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना जो फूड होता है, अपना नरिशमेंट होता है, वो एनिमल से ऑब्टेन करे, तो उसको बोलते हैं जूट्रॉपिक. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्लांट्स और एल्गी क्या हैं. वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या हो गए, फोटोट्रॉपिक हो जाते हैं. सो नेक्स्ट, phototropic organisms has the ability to convert. I repeat, phototropic organisms have the ability to convert. A option is light energy into chemical energy. B option is chemical energy into mechanical energy. C option is the solar energy into food energy. D option is the food energy into electrical energy. And E option is the solar energy into electrical energy. तो अब फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है लाइट एनर्जी का यूज़ करके, सोलर लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना खुद से बनाना. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. भाई केमिकल एनर्जी में तो वो कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो गलत हो गया. केमिकल एनर्जी तो उनके पास केमिकल तो होता ही नहीं है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये भी इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन. बात करें हम डी ऑप्शन की, दैट इज़ द फूड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी गलत हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उनको क्या करना. नेक्स्ट इज द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, ये फिर से रॉन्ग हो गया. सो करेक्ट ऑप्शन इज द सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी. वो सनलाइट का यूज़ करके उससे फूड की प्रिपरेशन करते हैं और उनका फूड होता है ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. नाउ in bacteria, photosynthesis is different from green plants because bacteria usually in dash springs. I repeat, in bacteria, photosynthesis is different from green plants because bacteria usually in dash springs. Option is hydrogen. B option is oxygen. Next is nitrogen, chlorine और sulfur. अब जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सल्फर स्प्रिंग्स में हमें मिलते हैं. सल्फर स्प्रिंग्स बैक्टीरिया, दैट इज द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया live in a sulfur springs. तो आंसर इज द सल्फर स्प्रिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ringworm infection is due to. I repeat, ringworm infection is due to. Option A is virus, bacteria, C option is fungus, and D option is the algae. The correct answer is the virus. जो ringworm है, ringworm is the viral disease. Now the next question is penicillin inhibits bacterial multiplication by. I repeat, penicillin inhibits bacterial multiplication by. First option is it inhibits cell wall formation. B option is it checks RNA synthesis. C option is it destroys chromatism. And D option is it checks spindle formation. Now penicillin is first antibiotic and it is discovered by the Alexander Fleming in 1928. Now जो पेनिसिलिन होती है वो बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकती है. तो वो बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को कैसे रोकती है? क्या वो इनहिबिट रोक देती है सेल वॉल की फॉर्मेशन को? बी ऑप्शन इज क्या वो आरएनए की सिंथेसिस को चेक करती है? क्या वो क्रोमेटिजन, जो क्रोमेटिन फाइबर्स बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं और उससे डीएनए की फॉर्मेशन होती है, उसको रोक देती है? या वो स्पिंडल फॉर्मेशन को चेक करती है? तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इट इनहिबिट्स द सेल वॉल फॉर्मेशन. जो पेनिसिलिन होती है वो सेल वॉल फॉर्मेशन को बनने नहीं देती है, जिससे बैक्टीरियाज की ना तो ग्रोथ होती है ना ही उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, और इससे आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है.
So यहाँ पे correct option is it inhibits the cell wall formation, that is the first option. Next, now we move on the next one, that is pick up the set of viral disease. Pick up the set of viral disease. Viral disease कौन सी हैं? First option is the polio, smallpox, typhoid, mumps. B option is polio, smallpox, influenza, mumps. C option is polio, smallpox, typhoid, cholera. D option is typhoid, cholera, diphtheria, tuberculosis. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन पोलियो. पोलियो एक वायरल डिजीज होती है. पोलियो होती है पोलियो वायरस से. बात करें स्मॉल पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स भी हमारे पास वायरल डिजीज है. ये होती है वेरियोला वायरस से. टाइफॉइड, टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज होती है. ये सैल्मोनेला टाइफी से होता है. डी ऑप्शन इज द मम्प्स. मम्प्स एक वायरल डिजीज है और ये हमारे पास पैरामिक्सो वायरस से होता है. तो यहाँ पे तो बैक्टीरिया आ गया, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा. बात करें सी ऑप्शन की, पोलियो. पोलियो वायरल डिजीज, पोलियो वायरस से होने वाला है. स्मॉल पॉक्स फिर से वायरल डिजीज, वेरियोला वायरस से होता है. टाइफॉइड फिर बैक्टीरियल डिजीज आ गया जो कि सैल्मोनेला टाइफी से होता है. कोलरा फिर बैक्टीरियल डिजीज आ गया. कोलरा हमारा विब्रियो कॉलरी से होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. बात करें डी ऑप्शन की, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज, सैल्मोनेला टाइफी से. कोलरा बैक्टीरियल डिजीज, कोलरा इज कॉज्ड बाय द विब्रियो कॉलरी. डिप्थीरिया इज ऑल्सो अ bacterial disease caused by Corynebacterium diphtheriae. And D option is tuberculosis. It also a bacterial disease caused by the Mycobacterium tuberculosis. तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट बी ऑप्शन इज द पोलियो. पोलियो इज कॉज्ड बाय द वायरस, दैट इज पोलियो वायरस. स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वायरस, दैट इज वेरियोला वायरस. सी ऑप्शन इज इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय द वायरस. इसमें 4 टाइप के वायरसेस होते हैं, ए बी सी और डी वायरसेस. मोस्ट कॉमन जो वायरस अब ह्यूमंस में स्प्रेड हो रहा है, दैट इज द ए टाइप ऑफ वायरस. तो ये भी वायरल डिजीज हो गई. मम्प्स, मम्प्स इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस. तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. One of the following is the correct match for disease and the causative agent. I repeat, one of the following is the correct match. आपको correct match देखना है, इनमें से कौन सी disease और उसका causative agent से वो match कर रही हैं. So हम बात करें अगर B ऑप्शन की, मलेरिया. मलेरिया is caused by फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. ये एक प्रोटोजोवन डिजीज होती है. नेक्स्ट सी ऑप्शन, एड्स. एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस. डी ऑप्शन इज सिफिलिस. सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज ट्रेपोनीमा पैलेडियम. ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, तो ये भी नहीं है. हमारे पास बचा वूफिंग कफ. वूफिंग कफ इज कॉज्ड बाय बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस. ये हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से होती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वूफिंग कफ. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वायरल डिजीज इज. आई रिपीट, द वायरल डिजीज इज. फर्स्ट ऑप्शन इज द स्मॉल पॉक्स. बी ऑप्शन इज द amoeboisis. C option is malaria and D option is diphtheria. If we discussed about the B, that is the amoeboisis. Amoeboisis is a protozoan disease and it is caused by Entamoeba histolytica. Next is malaria. C option is malaria. Malaria is also a protozoan disease and caused by female Anopheles mosquito. D option is diphtheria. Diphtheria is a bacterial disease that is caused by Corynebacterium diphtheriae. So viral disease, here viral disease is smallpox that is caused by variola virus. So here smallpox is the correct answer.
Now we move the next one, that is the malaria occurs due to. I repeat, malaria occurs due to. First option is female culex. B option is the female anopheles. C option is the male culex and D option is the male anopheles. सो मलेरिया हमारे पास फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की बाइट से होता है. हेयर द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज 37th क्वेश्चन. टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय. आई रिपीट, टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय. फर्स्ट ऑप्शन इज सिंगेला, बी ऑप्शन इज बैक्टीरिया, C option is Wucheria and D option is the fungus. So here correct option is the bacteria because typhoid हमारा bacterial disease होता है salmonella typhi से. salmonella typhi से ये disease हमें होती है, तो bacterial disease हो गई typhoid fever. So correct answer is B option. Now we move on the next question, that is common influenza is caused by. I repeat, common influenza is caused by. So common influenza is caused by, first option is virus, B option is bacteria, C option is protozoa and D option is the fungus. Now it is a viral disease. Influenza is caused by a virus, so it is a viral disease. मैंने अभी बताया था कि जो कॉमन इन्फ्लुएंजा होता है उसके 4 टाइप के वायरसेस होते हैं. 4 टाइप्स होते हैं वायरसेस के. फर्स्ट A, B, C और D. जो मोस्ट कॉमन अब स्प्रेड कर रहा है ह्यूमन बींग्स में वो A टाइप है, जो कि सर्कुलेट हो रहा है ह्यूमंस में. Now, so correct answer is A option, that is the virus. Now we move on the next question, that is trypanosoma is the causal organism of. I repeat, trypanosoma is the causal organism of. A option is plague, B option is diphtheria, C option is malaria and D option is the sleeping sickness. Okay, first option plague. प्लेग की अगर बात करें तो प्लेग होता है बैक्टीरिया से, दैट इज यर्सीनिया पेस्टिस. इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज. प्लेग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस. अगर हम बात करें डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया हमारे पास ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज और कॉज्ड बाय Corynebacterium diphtheriae. C option is malaria. Later I told you कि malaria is caused by the female anopheles mosquito and it is a protozoan disease. So here the correct answer is the sleeping sickness. Sleeping sickness is caused by Trypanosoma pallidum. Now we move on the next question, that is select the incorrect pair. Select the incorrectly matched pair. A option is AIDS HIV, B option is typhoid Salmonella typhi, C option is tetanus Pustula pestis and D option is cholera Vibrio cholerae. Okay, we discussed AIDS. AIDS is caused by HIV. It is correct. Now B option is typhoid. Typhoid is caused by Salmonella typhi, bacterial disease. It is also correct. Next, D option cholera. Cholera is caused by Vibrio cholerae. It is also correct. Now next, tetanus. Tetanus is caused by a bacterium, that is Clostridium tetani. तो ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से ये होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर गलत दे रखा है कॉजेटिव एजेंट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. सो आंसर इज सी ऑप्शन. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन.
Okay, the next question is ICDS scheme was implemented in the year. A option is 1975, B option is 1980, C option is 1968 and D option is 1978. सो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि ICDS, व्हाट इज़ ICDS? द फुल फॉर्म ऑफ ICDS इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम. आई रिपीट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम. और ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था इंडिया में ऑन 2 अक्टूबर 1975 में. कहाँ पे लॉन्च हुआ था ICDS? सबसे पहले जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, जामा मस्जिद में. अच्छा, इसका पर्पस क्या था? ये जो स्कीम है ये मेनली फोकस करती है ऑन रिड्यूसिंग द इन्फेंट्स एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट और इम्प्रूव करती है मैटरनल हेल्थ आउटकम्स को. Okay, so here A option is the correct option कि ICDS, that is Integrated Child Development Service Scheme, is implemented in the year 1975. Now we move on the next question, that is which approach is known as the revolutionary approach in healthcare? कौन सी अप्रोच है जो रिवोल्यूशनरी अप्रोच मानी गई है हेल्थ केयर के अंदर? दैट इज़ ऑप्शंस आर होलिस्टिक अप्रोच, बी इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच, सी इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड डी इज़ इकोलॉजिकल. सो हेयर सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर. इसमें केयर दी जाती है बोथ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज. सेकंड, इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं. इसमें जो हमारी एसेंशियल ड्रग्स होती हैं उनको डायग्नोज करने की सर्विसेज इंक्लूड होती है. सो इट इज़ अ प्राइमरी हेल्थ केयर. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is which mineral is necessary for the formation of hemoglobin? Iron, B calcium, C phosphorus and D option is potassium. So जो hemoglobin है that is combined with our HB, that is combined with our oxygen, हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ये क्या बनाता है? HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सिर्फ हीमोग्लोबिन के पास ही इतनी एफिनिटी होती है, इतनी पावर होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है. सो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है. सो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट मिनरल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ आयरन. सो यहाँ पे आयरन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ORS कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ORS में क्या होता है, किसको छोड़ के? ए ऑप्शन इज़ कैल्शियम क्लोराइड, बी ऑप्शन इज़ पोटाशियम क्लोराइड, सी ऑप्शन इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डी ऑप्शन इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है ये तो है ही ORS में मेनली सॉल्ट NaCl. वैसे भी अगर ORS सिंपल एक मिक्सचर होता है जिसको कंज्यूम किया जाता है जब डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में. सो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, सेलाइन वाटर मेनली आप ले सकते हो, वो भी ORS का ही काम करता है. पोटाशियम क्लोराइड ये भी KCl, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3. नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये नहीं होता है हमारे इसमें ORS में, बाकी सभी प्रेजेंट होते हैं.
So it is the correct answer, that is calcium carbonate. Now we move on the next question, that is which is the best way to determine the level of malaria in a society. सोसाइटी में अगर मलेरिया है तो आप कैसे पता करते हो? ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज स्प्लीन रेट, बी ऑप्शन इज ब्रूटेक्स इंडेक्स, C option is larval index, and D option is blood smear examination. So blood smear examination is the correct option, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, ब्लड स्मीयर में ब्लड को ग्लास स्लाइड पे लिया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। अगर उसमें आपको प्लाज्मोडियम के ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं तो हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव होती है, मतलब मलेरिया होता है। तो ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन बेस्ट तरीका है मलेरिया को चेक करने का। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ। जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उनकी जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है? वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, कार्डिक मसल्स या फिर नर्व सेल्स। ओके, अगर हम बात करें जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं, ठीक है। अब हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। कार्डिक मसल्स सिर्फ हार्ट की मसल्स होती है, तो ये तो डाइजेस्टिव ऑर्गन में पार्टिसिपेट नहीं करता हार्ट, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में ही होते हैं, ठीक है, सो ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे इनवॉलेंट्री मसल्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं यही इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट में भी हेल्प करती है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is hepatitis B is blood-borne virus known to affect which body organ। जो हेपेटाइटिस बी है ये ब्लड बॉर्न वायरस है, तो ये हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज लीवर, बी ऑप्शन इज ब्रेन, सी ऑप्शन इज स्प्लीन एंड डी ऑप्शन इज किडनी। सो हम बात करें यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की, तो ये हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ये मे बी एक्यूट भी कर सकता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, मतलब थोड़े टाइम में भी इफ़ेक्ट डाल सकता है और लंबे टाइम से भी इफ़ेक्ट डाल सकता है ये लीवर के ऊपर। इसके इफ़ेक्ट के कारण लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। सो हेयर ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच गैस इज़ यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। फ्रूट्स की राइपनिंग में कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है? ए ऑप्शन इज़ नाइट्रोजन, बी ऑप्शन इज़ ओजोन, सी ऑप्शन इज़ कार्बाइड गैस एंड डी ऑप्शन इज़ हाइड्रोजन गैस। So here mainly ethylene gas हम यूज़ करते हैं for ripening of the mangoes, but calcium carbide is given here, ethylene is not given, so calcium carbide gas is used and it is health hazard, it causes health hazard issues, so it is very dangerous. Now we move on the next question, that is which vitamin helps in the clotting of blood। ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ब्लड को जमाने के लिए, ठीक है, कई बारी इंजरी के टाइम पे हमारा ब्लड रिलीज़ होता है, ज़्यादा रिलीज़ होता रहता है, रुकता नहीं है, तो उस टाइम पे जमाने के लिए हमारे बॉडी में इंटरनली ही विटामिन प्रेजेंट होता है, बट अगर ना वो विटामिन हो तो हमारा ब्लड ऐसे ही बहता रहेगा। कुछ टाइम के बाद वैसे नॉर्मली देखा जाता है तो ब्लड रुक जाता है, बट अगर नहीं रुकता तब फिर चेक किया जाता है कि क्या डिजीज़ है। तो उस टाइम पे अगर आपका ब्लड नहीं रुक रहा है तो विटामिन्स की भी चेकिंग होती है। विटामिन, कौन से विटामिन की चेकिंग की जाती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के।
अगर बात करें विटामिन ए से हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, जो विटामिन के है, विटामिन के कॉज द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. So vitamin K is the right answer. Now we move on the next question, that is Anganwadi workers is selected from. आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं उनको कौन सेलेक्ट करता है मेनली? ए ऑप्शन इज कम्युनिटी, बी ऑप्शन इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सी ऑप्शन इज पीएचसी, या डी ऑप्शन इज फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट. देखिए ये जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, वैसे तो इनके प्रॉपर तो प्रोसीजर से ही इनको सेलेक्ट किया जाता है, बट ये कम्युनिटी ही हमारी सेलेक्ट करती है. तो हेयर ए ऑप्शन इज द करेक्ट, कम्युनिटी. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज T cells originate from stem cells located in the. जो T cells हैं वो किससे ओरिजिनेट होते हैं? स्टेम सेल से. स्टेम सेल्स कहाँ पे मिलते हैं? ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज लीवर, बी ऑप्शन इज बोन मैरो, सी ऑप्शन इज थायराइड ग्लैंड, और डी ऑप्शन इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. सो हम बात करें टी सेल्स की. टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं. इम्यून सिस्टम में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है बी सेल्स, दूसरा होता है टी सेल्स. सो जो हम बात करें यहाँ पे टी सेल्स, क्योंकि हमें मेनली टी सेल्स दिया है तो हम बी सेल्स की अभी बात नहीं करते हैं, वी जस्ट टॉक अबाउट द टी सेल्स. तो टी सेल्स किसका पार्ट होते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं. एंड दे आर डेवलप्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो. ये कहाँ पे बनते हैं? लिखा भी हुआ है स्टेम सेल्स लोकेटेड इन द बोन मैरो. सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इफ़ वी वांट टू नो कि इनका काम क्या होता है, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन. ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं और कैंसर्स के अगेंस्ट भी फाइट करते हैं. इसीलिए टी सेल्स को एक और नाम से हम बुलाते हैं, दैट इज़ टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट, और we can say that thymocytes. ठीक है, thymocyte. These T lymphocyte and thymocytes are known as T cells. Now we move on the next question, that is among the organ of the body that are rich in mature T cells and B cells are the. हमें इसमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा टी सेल्स और बी सेल्स किस में पाए जाते हैं. ए ऑप्शन इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बी ऑप्शन इज़ लीवर एंड गॉल ब्लैडर, सी ऑप्शन इज़ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन इज़ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स. ओके, अगर हम बात करें ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो मेनली हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं. तो ये तो टी सेल्स और बी सेल्स की फॉर्मेशन में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते. अगर हम बात करें लीवर की और गॉल ब्लैडर की, लीवर सिक्रीट बाइल जूस, और बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. तो ये तो डाइजेशन की तरफ जाता है, क्योंकि जो बाइल है वो डाइजेशन में हेल्प करता है. तो ये भी नहीं होगा. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये भी नहीं होगा. स्प्लीन और लिम्फ नोड, मेनली स्प्लीन और लिम्फ नोड यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि जो स्प्लीन होता है वो RBCs को डिग्रेड करता है. ठीक है, मतलब डीजनरेट RBCs फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे होती है, WBCs और लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है. सो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स मेनली हमारे स्प्लीन और लिम्फ नोड में स्टोर होते हैं. ठीक है, सो हेयर डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ all basic antibody molecules consist of.
जो भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है? ए ऑप्शन इज, मतलब उसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन बताना है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा. ए ऑप्शन इज 4 पॉलीसेक्राइड्स, बी ऑप्शन इज 4 चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, सी ऑप्शन इज 4 एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड डी ऑप्शन इज 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स. ओके, अगर हम देखें कि जो हमारे पास एंटीबॉडी होता है उसका कुछ जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. इसमें क्या होती हैं? 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं. दैट इज 2 हैवी चेन्स, ठीक है, और 2 लाइट चेन्स होती हैं. सो वी कैन से दैट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. अब पॉलीपेप्टाइड तो दिया नहीं है तो इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया. तो आप पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड किसको जोड़ता है? 2 अमीनो एसिड्स के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे से आंसर दिया गया है. सो 4 चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स यू राइट है. ठीक है, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट. यहाँ पे अगर दिया होता 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स देन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इज द करेक्ट, क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मतलब ही क्या है? यहाँ पे 4 चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट इज 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स. ओके, now we move on the next question, that is in every antibody molecules one can locate a. अगर हम बात करें एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही रहेगा? क्या होता है उसके पास? ए ऑप्शन इज हाई एनर्जी रीजन, बी ऑप्शन इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन्स, सी ऑप्शन इज ATP एक्टिवेटिंग एरिया एंड डी ऑप्शन इज एपिटॉप. सो अगर हम बात करें एपिटॉप की, मान लो एपिटॉप जो होता है ये एंटीजन में प्रेजेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये एंटीबॉडी में तो होगा नहीं. ठीक है, हाई एनर्जी रीजन और ATP एक्टिवेटिंग एरियाज ये भी सही नहीं होंगे यहाँ पे दोनों ऑप्शंस. यहाँ पे ये सही रहेगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजंस, क्योंकि अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है. ठीक है, लाइट चेन्स और हैवी चेन्स जो मैंने अभी आपको बताया. तो इसमें क्या होते हैं, ये जो साइड्स होती हैं दैट इज़ नोन एज द वेरिएबल रीजन्स. ठीक है, इनको वेरिएबल रीजन्स बोला जाता है. और ये जो नीचे होती हैं दैट इज़ नोन एज द कांस्टेंट रीजन. सो कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस एक्सप्लेन. जो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस होता है वो हमें क्या बताता है? चलो ए ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. ए ऑप्शन इज वाई पीपल डू नॉट डेवलप इम्यून रिस्पॉन्स टू देमसेल्व्स. बी ऑप्शन इज वाई इंडिविजुअल्स माउंट इम्यून रिस्पॉन्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. सी ऑप्शन इज वाई बी सेल्स एंड टी सेल्स आर डिफरेंट. एंड डी ऑप्शन इज वाई द मैच्योरेशन साइट्स फॉर बी सेल्स कैन नॉट बी लोकेटेड. ठीक है, हमें इनमें से बताना है कि क्या हमें टॉलरेंस, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस बताता है. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस होता क्या है. इसमें क्या होता है, जो इम्यून सेल बॉडी होती है, जो इम्यून्स होते हैं वो सेल बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. जो हमारे बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. किससे? सेल्फ एंटीजन से. कई बार क्या होती है, जो सेल्स होते हैं वो खुद की बॉडी के सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो उनको कंट्रोल करना दैट इज़ नोन एज द इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस. तो यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस हमें क्या बताता है कि वाई पीपल डू नॉट डेवलप इम्यून रिस्पॉन्स टू देमसेल्व्स. दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ we move on the next question. For the first 6 months of its life, a child depends on antibody. जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं किसी भी बच्चे की लाइफ में, ठीक है, तो वो
किस पर डिपेंड रहता है, वो एंटीबॉडी के लिए किस पे डिपेंड रहता है। बच्चे को हम ज़्यादा मेडिसिन्स भी नहीं देख सकते हैं, तो वो किस पर डिपेंड रहता है। फर्स्ट है रिसीव्ड इन फूड, जो भी फूड वो ले रहा है उससे। बी ऑप्शन इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम इट्स मदर, अपनी मदर्स पे। सी ऑप्शन इज एक्वायर्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, वो एंटीबॉडी को कहाँ से ले लेगा, इन्वायरमेंट से। एंड डी ऑप्शन इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स इम्यून सिस्टम सेल्स। तो हेयर अगर हम बात करें रिसीव्ड इन फूड, देखो फूड तो बच्चा इतना नहीं खाता है, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। और एक्वायर्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। एक तो उसकी खुद की बॉडी भी थोड़ा बहुत इम्यून सेल्स बनाती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, बट मेनली वो किस पे डिपेंड रहता है, अपनी मदर पे डिपेंड रहता है। मदर का जो मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम एक येलो कलर का फ्लूइड है जो फर्स्ट 6 to 7 डेज तक बच्चे को दिया जाता है। फर्स्ट जो मिल्क होता है दैट इज़ द कोलेस्ट्रम मिल्क, और उसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now we move on the next question, that is cytotoxic T cells are known for their ability to unite with, जो cytotoxic T cells होते हैं वो उनकी किसके साथ अटैच होने की पावर होती है। ये ऑप्शन इज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बी ऑप्शन इज स्मॉल मॉलिक्यूल्स नोन एज एपिटॉप्स। सी ऑप्शन इज सेल्स ऑफ फंजाई एंड द प्रोटोजोआ। एंड डी ऑप्शन इज ह्यूमन टिश्यू सेल्स। तो अगर हम बात करें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, साइटोकाइन एक केमिकल है उसको रिलीज करते हैं। साइटोकाइन केमिकल को रिलीज करते हैं। ये जो केमिकल होता है ये किस पे अटैक करता है, ये कैंसर सेल्स पे अटैक करता है, कैंसर सेल्स को डैमेज करता है। सो इनके पास पावर होती है, ये बैक्टीरिया और वायरस के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन set off as a result of। A option is phagocytosis, B option is T cells activity, C option is antibody activity, and D option is large foreign molecule activity। So complement system क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक प्रोसेस होती है जिसमें जो एंटीबॉडी होती है वो फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करती है कि ये मेरी बॉडी का सेल नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसके साथ जाके बाइंड हो जाती है, ठीक है। एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है फॉरेन मॉलिक्यूल के साथ, और the component protein become activated, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़म्स होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जिससे क्या करते हैं वो एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले तो हमारा जो एंटीबॉडी होगी वो फॉरेन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगी, फिर वो एक्टिवेट कर देती है अदर सेल्स को, अदर बॉडी को, कि हाँ फॉरेन मटेरियल एंटर कर चुका है, जिसके कारण वो जितने भी पैथोजेंस या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। इस एनगल्फिंग प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, फेगोसाइटोसिस। एनगल्फ द सॉलिड पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स। सो हेयर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now we move on the next and the last second question, that is IgE is well known for its participation in the, जो IgE होता है, ठीक है,
इसका काम क्या है मेनली, ये एंटीबॉडी है, ये किसके अगेंस्ट, ये इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबिन भी बोला जाता है, तो ये किसके अगेंस्ट पार्टिसिपेशन करती है। ए ऑप्शन इज़ फेगोसाइटिक रिएक्शंस, बी ऑप्शन इज़ पैसिव इम्यूनिटी रिएक्शन, सी ऑप्शन इज़ एलर्जिक रिएक्शंस और डी ऑप्शन इज़ रेटिक्यूलो एंडोथीलियल रिएक्शंस। अगर हम बात करें कि एलर्जिक रिएक्शंस, तो यहाँ एलर्जिक रिएक्शंस, क्योंकि जो आईजीई होती है ये तब एक्टिव होती है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करता है और हमें एलर्जी कोज करा, जैसे रेडनेस वगैरह हो जाती है, ठीक है, ईचिंग होती है, तब हमारे पास आईजीई मॉलिक्यूल सिक्रीट होता है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिव होता है। सो इट टेक पार्टिसिपेट इन द एलर्जिक रिएक्शंस। जब भी आपको कोई एलर्जी होती है तो आपका आईजीई जो इम्यूनोग्लोबिन होता है उसका अमाउंट इंक्रीज होता है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट वन। द साइट ऑफ बी सेल्स मैच्योरेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो बी सेल्स होते हैं वो कहाँ पे मैच्योर होते हैं? सो ऑप्शंस आर थाइमस, B option is brain and spinal cord, C option is not yet identified and D option is tonsils and the adenoids. So जो B cells होते हैं वो मेच्योर होते हैं रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, ओके। प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? रेड बॉन मैरो में। मेच्योर भी रेड बॉन मैरो में, प्रोड्यूस भी रेड बॉन मैरो में। तो यहाँ पे हमें रेड बॉन मैरो नहीं दिया हुआ, सो हेयर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट येट डिफाइन। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन या फिर अदर टॉपिक्स of biology, then you mention in the comment section. Okay, thank you so much.